तबीयत से उछाल देखिए कि ख्वाहिशों के समंदर में चाहतों की मछलियां कितनी हैं, फेंक कर तो बुद्धि का जाल देखिए। अरे समुद्र के सीने में ही मिला करते हैं मूंगा और मोती, समुद्र के सीने में ही मिला करते हैं मूंगा और मोती। बस एक बार समुद्र को खंगाल देखिए। इसी कड़ी में आपको कहना है कि लीजिए इस आलीशान मंच पर देखिए एक बच्चों के कार्य का क्या जलवा है। आइए देखिए इन बच्चों। के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। सभी छात्र बीच बीच में तालियां बजाते रहे। सोने के चिड़ैया मोरा देश रे, कहवा छिपौले रे बहेलिया, कहवा छिपौले कैसे जलवा बिछौले, कहवा छिपौले कैसे जलवा बिछौले, मरले करे जावा में ठेस रे, कहवा छिपौले रे बहेलिया, सोने के चिड़ैया मोरा देश रे, कहवा छिपौले रे बहेलिया। एकता की सीता हमारी गैनी कौन बनावा, एकता की सीता हमारी गैनी कौन बनावा, धोखवा कमैनी कैसे फिर से रवनावा, धई के तू राम जी के भेस रे, कहाँ छुपौले रे बहेलिया, सोने के चिड़ैया मोरा देश रे, कहाँ छुपौले रे बहेलिया। क्लास है ये हमारे सामने मंच पे जो बालिका खड़ी है, ये भारत माता के रूप में आपके
बाजी लगाई, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु अपनी भारत माता को नीलाम नहीं होने देंगे। ऐसी घोर यातना के साथ तमाम कष्टों को सहते हुए वीर जवानों ने भारत माता की लाज को बचाने का प्रयास किया है। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस अभिनय से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम आपस में विभक्त न होकर के एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के लिए यदि समर्पित हो तो किसी माई के लाल में दम नहीं या कोई ऐसा देश नहीं जो भारत देश की तरफ अपना दृष्टि दिखा सके। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर के इसका सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। Fellow guests are come here which can describe the loyalty and the purity of the justice. Here I have some words for them. It's a rare and profound honor to stand here today to welcome a personality who personifies the strength and the integrity of our judicial system. On behalf of the entire institution, I extend a most sincere welcome to our chief guest of the evening. Our first chief guest is Mr. Pradeep Kumar Pandey, who was a supply inspector. And our second chief guest is Mr. Arvind Jaiswal, who was an Kshetriya Upadhyaksh from Bharatiya Janata Party. And our third chief guest is Pujari ji from our famous temple of Bhairav Baba. They are the main personalities which recognize the Azamgarh in a very brilliant and fascinating way. Here we have some words for them. I extend a most sincere welcome to our chief guest of the evening. The position of a chief guest is not merely a title. It is the cornerstone of our democracy. It represents the unwavering commitment to the truth, the protection of individual rights, and the maintenance of the rule of the law. Sir, your career has been a testament to these values through your landmark judgments and your dedication to the pursuit of equality. You have shown us that justice is not about the letter of the law, but also a spirit of fairness that binds a society together. For the students and professionals gathered here today, your presence is a powerful reminder of what can be achieved through discipline, intellectual rigor, and uncompromising moral compass in a world that is constantly changing. Your system requires. We are truly fortunate to have the opportunity to learn from your vast experience and wisdom. Our annual function is a time to reflect on our achievements and set our sights on the future. Having you here as our chief guest add a layer of prestige and significance to our celebration. Your journeys serves a roadmap for excellence, motivating us and strive for the highest standards in your our lives and careers. Here I am going to thank you again for your coming and wishes for you. Thank you.
हरिजन भाई ने। पंथ निहारत डगर बहारत ओ, पंथ निहारत डगर बहारत होला सुबह से शाम कहियो दर्शन दी है हो मिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो मिलनियों के राम। गुरुवर मतंग जी बनले रंगले राम रंग में बालिका से भेद भैले ओ हिरे तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में बालिका से भेद भैले ओ हिरे तरंग में। नाम रूप लीला धाम के हो, नाम रूप लीला धाम के सुमिरन आठो याम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। अधम ते अधम अधमयति नारी ऊत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। अधम ते अधम अधमयति नारी ऊत चक्रवर्ती के कुमार धनुधारी। चिखी चिखी बैर साज के राखब हो, चिखी चिखी बैर साज के राखब आई भोग के काम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल सबरी शिकारी भरने भगती में पागल। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल सबरी शिकारी भैरी भगती में पागल। उहे डगर तू धरा कान्हा, उहे डगर तू ही धरा है कान्हा पैबा परम विश्राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। बहुत बहुत धन्यवाद। याद आता है मुझे वो वृंदावन की गलियां याद आती हैं, वो यमुना का तट याद आता है, वो मेरी गैया याद आती हैं। मुझे कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मुझे झकझोर के रख देती हैं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इस प्रकार उद्धव जी जब सुनते हैं श्री कृष्ण की बात, वो कहते हैं कि आप पर ब्रह्म होकर के भी ऐसी छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हैं। आपको तो ब्रह्म ज्ञान योग की शिक्षा गोपियों को दे के आना चाहिए था। वो प्रेम योग को क्यों लेकर के परेशान है? जो ज्ञान से देखा जा सकता है वो कुछ भी नहीं हो सकता। अब भगवान को लगा कि उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार हो गया है, तो क्यों ना इनके ज्ञान के घमंड को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा ठीक है उद्धव जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि गोपियों को प्रेम की शिक्षा से हटा करके ज्ञान की शिक्षा, योग की शिक्षा दे दी जाए और वे योग साधना में जुट जाएं, तो ये मेरे लिए बड़ी बेहतर बात होगी। आइए, इसके लिए हम आपको ही भेजते हैं। आप मेरा संदेश लेकर के ब्रज जाइए और वहाँ की गोपियों को मेरा संदेश दीजिए कि आप लोग मुझे भूल करके निराकार ब्रह्म की उपासना में लग जाइए और आप लोग जो है मेरे ध्यान को छोड़ करके अपने योग साधना में लगिए, जिससे आपका परम कल्याण होगा। जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचते हैं और जब नंद बाबा के दरवाजे पर उद्धव जी का आवागमन होता है, उस समय गोपियां जब पता चलता है पूरे ब्रज में कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के आए हैं। आइए, एक छोटी सी कृति है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं।
उसमें वो कहते हैं कि जब गोपियों को पता चला कि उद्धव जी के द्वारे पे नंद बाबा के दरवाजे पे उद्धव जी आए हैं, तो इन्होंने लिखा है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज भावन में जावन जबे लागी। जब सबको पता चला कि उद्धव जी ब्रज में आ रहे हैं, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी। रत्नाकर दास जी कहते हैं उस समय ग्वालिने दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के दरवाजे पर आती हैं कि कब आए हैं, कहाँ आए हैं, क्या संदेशा है, मेरे लिए क्या है, उसके लिए क्या है। धन्य है भगवान श्री कृष्ण जो एक साथ इतने भक्तों से प्रेम करते हैं और इतने सारे भक्त उनसे प्रेम करते हैं, परंतु हर भक्त को यह लगता है कि यह सिर्फ मेरे हैं। ऐसी विह्वलता के साथ गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पर बार बार दौड़ी हुई आती हैं। लिखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कि कह रत्नाकर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तवे लागी, उझुकी पद कंजन के पंजन पे अपनी एड़ियों को उठा करके पंजों पे खड़ी होकर के बार बार वो पूछती हैं, पेखी पेखी पाती पाती यानी चिट्ठी, बार बार चिट्ठियों को देख करके छाती छोहनी समय लागी, अपने अपने सीने पर हाथ रख के बड़ी प्रसन्नता में है और कहती हैं हमको लिखा हुआ है कहाँ, हमको लिखा हुआ है कहाँ, हमको लिखा हुआ है कहाँ, कहन सब लागी। बार बार उद्धव जी से पूछती हैं, हे उद्धव जी इस पंक्ति में मेरा कहाँ नाम है, मैं कहाँ हूं, ये बात हमको बताइए। जिसमें जब उद्धव जी बताते हैं कि नहीं, उनका कोई संदेश नहीं है, उनकी सिर्फ एक कथा है। उनका कहना है कि हम आप लोगों को प्रेम मार्ग से हटा करके ज्ञान के मार्ग में यानी आपको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दें, जिससे आप लोग जो है निराकार ब्रह्म की उपासना करें। जिसमें वो तब गोपियां कहती हैं कि आए हो सिखावन योग मथुरा से तो पे, उद्धव जी भी योग के वचन बतराई ना। आए हो सिखावन योग मथुरा से तो पे, उद्धव जी भी योग के वचन बतराओ ना। यह रत्ना कर दया कर दस दिनी, दुख दारी को तो अधिक बढ़ाओ ना। वो गोपियां कहती है हम लोगों का दुख और मत बढ़ाइए। एक मन मोहन तो बस के उजारो मह, कह रही है गोपियां कि एक उद्धव जो हमारे हृदय में बसा हुआ है वो तो हमको अकेले उजाड़ रखा है, और आप जैसी बात लेकर के आए हैं, अगर हम इस बात को धारण करते हैं तो मेरे हृदय जो है वो चूर चूर हो जाएगा। और एक बार जब दर्पण टूटता है तो उसमें एक ही चित्र न जाने कितनी बार दिखता है। तो गोपियां कहती है कि आपका ये एक मोहन तो हमारे हृदय में है, बाकी इसके अलावा दूसरे को हम रख नहीं पाएंगे। जिसमें वो कहती हैं कि ही हमें एक मन मोहन तो बस के उजारो महा, ही हमें अनोख मन मोहन बसाओ ना। और चूकी चूकी वही मन मुकर हमारो हाय, चूकियों कठोर बैन पाहन चलाओ ना। कह रहे ऐसे बातों को बोल करके हमारे हृदय को तोड़ने का काम ना करें। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के हैं, और हम जितना प्रसन्न इस प्रेम मार्ग में हैं, मुझे नहीं लगता कि हम ब्रह्म मार्ग या निराकार ब्रह्म की उपासना करके या ज्ञान ब्रह्म की सहायता से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। वो बोले कि आपको लगता होगा कि हम गोपियां दुखी हैं, लेकिन हमें इस दुख में भी ऐसी प्रसन्नता है जिसका हम आपको अपने शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हैं। लीजिए, ऐसे ही प्रस्तुति के साथ आपके बीच में हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं। क्लास 8 की छात्राएं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 कम ऑन द स्टेज।